Okay, now. Hello, friends. My name is Deepak, and I'm the host of this webinar series. Welcome to another session of SES Online. So, friends, this is the second day of our three-day workshop on option trading strategies. And the topic that we are covering in this session will be Strangles and Iron Condor strategies. So, without further delay, I invite Mr. Rohit Katwal. Rohitji, may I request you to please join us? Yeah, I'm here with you, Deepak ji. How are you? I'm good, sir. Uh, Allow me to make you presenter. So is my Yes, now we screen can see visible? you, sir. Yes, Okay. sir. Yes, your screen is visible as well as you are visible, sir. You are looking smart and handsome as always. Thank you. So, sir, as you said, आज की सेशन बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंटरेक्टिव होने वाला है. क्योंकि थ्योरी हो चुकी है, अब हम लोग प्रैक्टिकल के बारे में बात करेंगे. Exactly. तो एनालिसिस हो चुका है, अब हम लोग ट्रिगर के बारे में बात करेंगे. wonderful, wonderful, sir. So, sir, let's start. Without further delay, over to you, sir. Okay. So हेलो गाइस, जो हम लोगों ने अपनी लास्ट वेबिनार किया था, in that webinar we talked about the net credit and net debit strategies. Whenever you're doing the option strategies or option trading, it is imperative for you to understand कि when you're taking a strategy, आपकी लेजर के ऊपर उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है. ठीक है. When you are creating a strategy, are you a net seller or a net option buyer, so that at the end of the month what will happen. ठीक है. That is why it was very useful to understand what is net credit and net debit strategies. Moving forward, I promised you today that we will be covering strangles, iron condors, and specifically what should be the trigger when we are going to do strangles and iron condors. Okay, so for that part, let us just start. Okay, so ये जो है हमारा कंटेंट आज की प्रेजेंटेशन का रहने वाला है. This is going to be the content of our discussion. Okay, we're going to talk about iron condors, we're going to talk about strangles, we're going to talk about what are their pros and what are their cons, उनके positives क्या है, उनके negatives क्या है, technical setup जिसके अंदर I will use Bollinger Bands and I will use ADX, and finally strategy, और उस strategy को हमें implement किस तरीके से करना है. ठीक है, let's move ahead. So guys, सबसे पहले the strategy that we will be using is iron condor. तो आयरन कॉन्डोर को हम लोग यूज करने वाले हैं. ठीक है, इट इज अ साइडवेज स्ट्रेटजी. लास्ट प्रेजेंटेशन के अंदर वी अंडरस्टूड अबाउट द बुल पुट स्प्रेड एंड अ बियर कॉल स्प्रेड. ठीक है, give it to me. Guys, wait a second. So yeah, लास्ट जो हम लोगों ने प्रेजेंटेशन की थी उसके अंदर हम लोगों ने बुल पुट स्प्रेड के बारे में बात की थी. बुल पुट स्प्रेड के अंदर if the market is going up like this, what we used to say, हम यहां से एक पुट सेल करेंगे एंड इस जगह से यहां से एक पुट को हम लोग बाय करेंगे. सिमिलरली अगर हमें लगता है कि मार्केट नीचे आने वाली है, ठीक है, इट इज गोइंग टू गो डाउन, हम लोग बियर कॉल स्प्रेड करते हैं. बियर कॉल स्प्रेड के अंदर क्या होता है, हम लोग यहाँ पे एक कॉल को सेल कर देते हैं और यहाँ पे हम लोग एक कॉल को बाय कर देते हैं. ठीक है, सो ये हमारी यहाँ पे इट इज अ बियर कॉल स्प्रेड एंड दिस हियर इज अ बुल पुट स्प्रेड. अब ये उस कंडीशन में है व्हेन वी आर थिंकिंग द मार्केट इज गोइंग टू गो अप, ये उस कंडीशन में है जब मार्केट इज गोइंग टू गो डाउन. हमारे लिए ऑप्शन सेलिंग के अंदर वी हैव अ थर्ड कंडीशन वेयर we are like, what if for a certain period of time market can keep on doing like this, it is exactly sideways. साइडवेज पीरियड्स के अंदर हम लोग आयरन कॉन्डर की स्ट्रेटजी को करते हैं. व्हाट इज एन आयरन कॉन्डर स्ट्रेटजी? आप एक बुलपुट स्प्रेड क्रिएट कर दो, एक बियर कॉल स्प्रेड क्रिएट कर दो एक पर्टिकुलर इंडेक्स या अंडरलाइन के ऊपर, इट इज एन आयरन कॉन्डर. ओके,
इसके अंदर हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होती है? आवर एक्सपेक्टेशन इज दैट मार्केट इज गोइंग टू गो लाइक दिस, बट एग्जैक्टली व्हेन विल मार्केट गो लाइक दिस, दैट इज द $1 million क्वेश्चन कि वो कब इस तरीके से साइडवेज होना शुरू करेगी, ठीक है। सो इसको हम लोग आज फिगर आउट करेंगे, ठीक है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जितने भी स्टॉक्स हैं, जितने भी इंडेक्स हैं, जो उनका ट्रेंडिंग पीरियड होता है, ये वाला पीरियड जब वो एकदम से ब्रेकआउट करते हैं, दैट इज ओनली 30 to 25% टाइम। रेस्ट 65 to 75% जो टाइम होता है, 75% टाइम स्टॉक्स जो होते हैं वो ऑलमोस्ट साइडवेज होते हैं। इसीलिए आयरन कॉन्डोर एंड स्ट्रैंगल्स, दीज आर वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड ऑप्शन स्ट्रैटेजीज। पर प्रॉब्लम क्या आती है? लोग इसको गलत तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। Deepak ji, you can open the questions, ठीक है। So if there are some questions, we will take it head on. Okay, so guys, like I said, this is an iron condor, okay। इसका जो ग्राफ है वो इस तरीके से लुक करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, बैंक निफ्टी इज एट 40,700, 40,900 की कॉल को हम लोग सेल करेंगे, 41,100 की कॉल को हम बाय करेंगे, नीचे 40,500 की पुट को वी विल सेल एंड 40,300 पुट वी विल बाय। ये हमारा बुल पुट स्प्रेड है, ये हमारा बेयर कॉल स्प्रेड है, हमारा इस तरीके का पे ऑफ कुछ आ जाएगा। सो टिल द टाइम इन दिस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी प्राइस इस रेंज के अंदर मूव कर रहा है, आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रॉफिट हो। एंड बिकॉज हमारी अपर कॉल और लोअर पुट्स जो है वो हेज की हुई है, हमारा जो लॉस है वो लिमिटेड है, ठीक है। थर्डली, ये एक हेज स्ट्रेटेजी है, ठीक है। हेज स्ट्रेटेजी होने की वजह से even if you have a margin of 1 lakh, you can easily do this kind of trade. Thirdly, इसके अंदर आपको easily, अगर आप इसको ठीक तरीके से करो, ज्यादा भी मिलता है, you can easily take 2 to 3% on your deployed capital easily, ठीक है। इसकी यहाँ पे हमने इस पर्टिकुलर ग्राफ को एक्सपायरी के पास बनाया हुआ है एंड छोटी रेंज के अंदर क्रिएट किया हुआ है। यू कैन सी द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट इज लेस, ठीक है। बट जब हम इसको प्रॉपरली बनाते हैं तो इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट भी 65% से अबव रहता है, ठीक है। प्रॉफिट भी 3 से 4% पे आता है, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि ये नहीं आपके वे में जा रही है, आप उसको एक मिनिमल सा लॉस लेके खत्म कर सकते, ठीक है। सो strangles is basically iron condor but without hedge, without hedge। strangle का मतलब क्या होता है? मार्केट इज रनिंग एट 40,700, आप यहाँ पे एक 41,000 की कॉल को सेल कर देते हो, इसको सेल कर दो, और यहाँ पे आप एक 40,400 की पुट को सेल कर दो। इसके अंदर कोई हेज मत दो, दिस इज योर स्ट्रैंगल, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है? इसके अंदर आपको प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन तो ज्यादा होती है, प्रॉफिट आपका इंक्रीज हो जाता है बिकॉज आप हेजेस को रिमूव कर रहे हो, बट एज यू कैन सी आपका जो टेल रिस्क है नीचे की साइड को, दैट नाउ बिकम्स अनलिमिटेड, ठीक है। बिकॉज आपने कोई प्रोटेक्शन नहीं डाली होती इस जगह पे। सो आपका अगर प्रॉफिट इंक्रीज होता है तो आपका रिस्क भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। सो इसको बहुत ध्यान से यूज करना चाहिए। स्ट्रैंगल्स करने का ज्यादा जो टाइम होता है वो इंट्राडे में होता है, बिकॉज ओवरनाइट रिस्क आजकल मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा रहता है, देयर इज अ लॉट ऑफ ओवरनाइट रिस्क, सो दिस शुड नॉट बी डन ओवरनाइट, ठीक है। नाउ वंस वी नो कि हाउ द मैकेनिक्स ऑफ दीज टू option spreads work, let's move ahead and see what is the technical setup to do it, okay। This is the technical setup that we are going to use, ठीक है। इसके अंदर मैं पैरामीटर्स चेंज करता हूं। इन दिस पर्टिकुलर सेटअप आई change the default parameters, so please note it। I'm using 22 periods Bollinger Bands and either 2 or 3 standard deviation, ठीक है। and the time frame is daily charts, ठीक है। Why I am using the Bollinger Band? I am using Bollinger Band because I want to understand कि मुझे किस जगह पे कॉल सेल करनी है and I want to understand किस जगह पे मुझे पुट सेल करनी है, ठीक है। and for that why I am using Bollinger Bands? because Bollinger Band हमें प्राइस की स्टैंडर्ड डेविएशन बताता है। स्टैंडर्ड डेविएशन बताने का क्या मतलब है, ठीक है।
एक बेल कर्व हमारी स्टैटिस्टिक्स के अंदर यूज होती है जो इस तरीके से बनती है, ठीक है। इस बेल कर्व के अंदर 1 स्टैंडर्ड डेविएशन जो होती है वो यहां तक आती है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है इस स्टैंडर्ड डेविएशन का, कि जितना भी अप्रोक्सीमेटली 66% या 65 से 65% के जितने भी सैंपल्स होते हैं वो सारा का सारा इस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर आता है, ठीक है। उसके बाद हमारी 2 स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाती है यहाँ पे, और 2 स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाती है यहाँ पे, एंड देन इज अ 3 स्टैंडर्ड डेविएशन। सो जितनी मैक्सिमम प्राइस की फ्लक्चुएशंस होती हैं अप्रोक्सीमेटली 97% तक, वो 2 स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर कैच हो जाती है, ठीक है। सो हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारा प्राइस होता है उसके ऊपर इस तरीके से अपना बोलिंगर बैंड लगा लेते हैं, एंड देन इसकी जो सेटिंग्स है वी डू इट फॉर 22 एंड 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, सो दैट हमें पता चल जाए कि वो रेयर पॉइंट कौन सा है जहां पे मार्केट विल नॉट हिट। हमारा जो टारगेट है, वी हैव टू सेल एन ऑप्शन ऑफ अ रेंज जिसके अंदर मार्केट घूमती रहे पर ऊपर जाने की कोशिश ना करे। सो व्हेन वी आर सेलिंग एट 22 एंड 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, चांसेस है कि वो वाली जो स्ट्राइक है वो ब्रीच नहीं हो, ठीक है। एंड अगेन व्हाई वी हैव टेकन अ 22 पीरियड, बिकॉज हमारा जो एक ट्रेडिंग मंथ होता है दैट इज अ 22 पीरियड, दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग 22 पीरियड 3 स्टैंडर्ड डेविएशन बॉलिंजर बैंड्स। सेकंड थिंग, जस्ट हमें एक स्टैंडर्ड डेविएशन का पता होना इज नॉट द ओनली थिंग दैट वी नीड टू नो, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि चार्ट के ऊपर हमें सेल कब करना है, ठीक है। व्हाट शुड बी द ट्रिगर। नाउ एडीएक्स हम लोग इसलिए यूज करते हैं बिकॉज एडीएक्स हमें ट्रेंड बताता है कि मार्केट किस जगह पे ट्रेंड हो रही है। So if the ADX line starts moving above greater than 23, it is said that the market is trending in that direction, ठीक है। So for example, अगर मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ बात करूँ, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पे as you can see it, जब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ उस पर्टिकुलर टाइम पे, see how the ADX started to move up, ठीक है। इसका मतलब जब 23 से ADX ऊपर की तरफ हो जाता है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे ADX ट्रेंड कर रहा होता है, ठीक है। सिमिलरली जब 50 के ऊपर के पॉइंट से, इस पर्टिकुलर पॉइंट से एडीएक्स वापस नीचे की तरफ को रिसीड करना शुरू कर देता है, दैट इज द टाइम व्हेन वी कंसीडर दैट राइट नाउ द मार्केट इज नॉट ट्रेंडिंग, और ऐसे स्टॉक को हम लोग अगर एक साइडवेज पोजीशन क्रिएट कर लें देन इट विल बी बेनिफिशियल, बिकॉज अल्टीमेटली सारा कुछ टेक्निकल एनालिसिस के अंदर इस जगह पे आ जाता है दैट देयर विल बी अ ट्रेंड, ट्रेंड के बाद there will be a sideways movement, after that sideways movement there will be again some kind of trend, फिर again there will be sideways movement। so ये जब ट्रेंड खत्म होता है और उसके बाद साइडवेज चैनल जब स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, उस साइडवेज चैनल के बारे में हमें पता चलता है एडीएक्स से। इसके बेसिस पे व्हाट इज द ऑप्शन दैट वी हैव टू सेल, दैट इज टोल्ड टू अस बाय द बोलिंजर बैंड। इज दिस थिंग क्लियर? यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। Do we have any questions here? I cannot see Not the yet, question. sir. Okay. No, sir, not yet. Okay. So guys, Guys, I please hope ask a question wherever you feel any doubt. Your questions are very, very important for us. So don't hesitate and ask as many as you want. guys, क्योंकि मुझे ऐसा है कि मुझे ये सेटअप पूरी तरीके से क्लियर है, तो मेरा क्वेश्चन नहीं भी आएगा तो चलेगा, पर अगर आपके दिमाग में रह गया फिर उसको मैं दोबारा सॉल्व नहीं कर पाऊंगा उससे, ठीक है। So that is Yeah, why we have this a is question, Rohit ji, we have a question from Mr. Sandeep, and he's asking to repeat the last part of the process. which part exactly? I'm not able to see any messages actually, that is why. Just allow me a minute. I think now you would be able to see. Rohit ji, your audio is not coming at. या मेरे से गलत दब गया था। So हाँ yeah, हाँ ठीक है, मिस्टर please. संदीप, मिस्टर संदीप, हमने दो इंडिकेटर यूज कर रहे हैं, बोलिंगर बैंड्स
को हम लोग यूज कर रहे हैं टू अंडरस्टैंड विच स्ट्राइक वी आर गोइंग टू सेल, 2 or 3 standard deviation so that we can select the strike जहां पे प्राइस के जाने के चांसेस कम है. That is the first thing. Second thing is ADX when starts coming down from 45 plus levels, that is when we take that the market is now sideways. ठीक है, so हमें एक sideways market का trigger मिल जाता है. We get the upper and the lower strikes जहां पे हमें sell करना है. That is how we decide कि हमें किस position को create करना है. ठीक है, so now let's talk about strangle. In this particular example here, Uday, I have given the settings of Bollinger Band and ADX in the slides itself. So once the video is uploaded, you will see 22 and 3 and ADX is default. Okay. So in this particular case, as you can see with this particular strangle on Reliance, we have sold a 2500 call at 34 and 2200 put for ₹6. ठीक है, इस पर्टिकुलर पोजीशन के अंदर the total margin required is approximately 1,12,000. Net credit that we are receiving is 10,150. This is the maximum profit that can happen on this particular trade. But again, because this is a strangle, you can see कि इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद आपका मैक्सिमम लॉस शुरू हो जाएगा यहाँ. ठीक है, सो व्हाट आई सजेस्ट इज, एक तो इसको डेली टाइम फ्रेम के ऊपर यूज करो एंड देन सेकेंडली आइदर यू यूज अ 1:1 स्टॉप लॉस. 1:1 स्टॉप लॉस का मतलब है आइदर अगर आपका 10,000 का मैक्सिमम प्रॉफिट है तो आप इसके ऊपर 10,000 का ही अपना मैक्सिमम लॉस का स्टॉप लॉस लगा के चलो. और दूसरा, अगर बाय द एंड ऑफ एक्सपायरी या तो आपका 10,000 का लॉस हो रहा है या फिर आपकी जो ये स्ट्राइक आपने सेल की हुई है 2200 की पुट या 2500 की कॉल, या फिर वो आईटीएम आनी शुरू हो जाती है. इन दोनों में से कोई भी इवेंट अगर पहले आ जाता है, जस्ट एग्जिट द पोजीशन. दिस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी हैज अ विन रेट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 60 to 70%. सो अगर इसको रूल्स के साथ किया जाए तो इट इज अ वेरी गुड स्ट्रेटजी. बट अगेन आई एम सेइंग on a positional basis, don't do the naked strangles. ठीक है, right now यहाँ पे कोई hedging नहीं है, so अगर एक बड़ा gap up या gap down होगा, that will be very bad thing. So again, talking about the technical setup, this is the chart of Reliance. As you can see in this particular example, यहाँ पे Reliance already नीचे आ रहा है. ठीक है, it is in a downtrend. जब तक ये डाउन ट्रेंड में था ADX ऊपर जा रहा था. वंस ADX स्टार्टेड टू कम डाउन एंड ये वाला ट्रेंड चेंज होके इस लाइन को कट करके वापस आ जाता है, दिस इज द नाउ टाइम टू डू स्ट्रैंगल. आप लोग यहाँ पे अपनी एक कॉल सेल कर सकते हो और यहाँ पे अपनी एक पुट सेल कर सकते हो. ठीक है, एंड अगेन इट इज डेली टाइम फ्रेम चार्ट. इसके ऊपर एक एग्जांपल के ऊपर हम लोग और जाते हैं. ठीक है, लालपथ लैब्स. लालपथ लैब्स के अंदर डाउन ट्रेंड चला हुआ था. ठीक है, ADX एक्सट्रीम के ऊपर पहुंच गया हुआ है. ठीक है, यहां से नीचे को जाना शुरू हो गया हुआ है. दैट मींस जो ट्रेंड डाउन था अब वो साइडवेज को जा रहे हैं. यहां से ऊपर जाने के बाद जब प्राइस एक बारी नीचे को कट करेगा, दैट इज द पीरियड फॉर यू व्हेन यू कैन सेल अ कॉल हियर एंड यू कैन सेल अ पुट हियर. जो इंडेक्स और इंडेक्स के ऊपर जो स्टॉक्स होते हैं निफ्टी के अंदर या एफएनओ के अंदर, ठीक है, ये जितने भी स्टॉक्स हैं, व्हाट यू विल नोटिस इज कि ऑन दी स्टॉक्स ट्रेंड बहुत कम आता है. ट्रेंड इज वेरी लेस. मैक्सिमम टाइम जितने भी स्टॉक्स हैं दे आर डूइंग द मीन रिवर्सल. मीन रिवर्सल का मतलब है वो थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, आपको लगेगा कि द ब्रेकआउट इज कमिंग टू द अपर साइड. एज सून एज यू विल बाय, immediately the market will reverse. As soon as you will sell, market will reverse.
एंड यही चलता रहेगा इसके अंदर। सो ऐसे केसेस के अंदर स्ट्रैंगल्स जो है वो आप लोगों की एक बेस्ट बेट बन जाती है उस चीज के अंदर। हर्षित, आई हैव टोल्ड यू दिस बॉलिंगर बैंड इज द स्ट्राइक प्राइस यू हैव टू चूज। अगर आपको अच्छा प्रीमियम नहीं मिल रहा, आप इस बॉलिंगर बैंड से थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकते हैं, ठीक है। अनदर एग्जांपल एसबीआई। एसबीआई ने अपना ब्रेकआउट किया इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है। ब्रेकआउट करने के बाद एडीएक्स वेंट अप, ठीक है, बट यहां पे जाके फिर से नीचे को टर्न कर गया। नाउ आइडियली आपको इसको वेट करना चाहिए कि वंस इट गोज डाउन, ये जो इसके अंदर बेस लाइन होती है ना एडीएक्स के अंदर, इस लाइन को एक बारी ब्रेक करके इस तरीके से आ जाए। अभी इसने प्रॉपरली ब्रेक नहीं किया है, पर इसको एक बारी ब्रेक कर ले। एक बारी ब्रेक कर देगा ना, देन इट इज कंफर्म कि हाँ अब मार्केट जो है ये साइडवेज रहने वाली है। सो एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट एट 528 यू सेल अ पुट ऑफ 500 एंड यू सेल अ कॉल ऑफ 590। अगर आपको लगता है कि 590 के ऊपर यू आर नॉट गेटिंग इनफ प्रीमियम, आप थोड़ा सा एक स्टेप नीचे भी आ सकते हो 580। एंड दिस इज हाउ यू डू अ स्ट्रैंगल। और इस सारी ट्रेड के अंदर इफ यू आर डूइंग स्ट्रैंगल्स, आपके दो स्टॉप लॉस होने वाले हैं। वन स्टॉप लॉस इज जो आपका मैक्स प्रॉफिट है, दैट इज 1:1 का रिस्क, 1:1 का रिवॉर्ड। सो अगर आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है 5000 का और आपका लॉस जा रहा है 5000 के ऊपर, आई सजेस्ट उसको क्लोज कर दो। एक तो ये स्टॉप लॉस है। दूसरा स्टॉप लॉस है, अगर लेट से आप आज पोजीशन लेते हो और 27 मार्च तक वो पोजीशन प्रॉफिट में चल रही है, अब एकदम से आपने 590 की कॉल सेल की हुई थी, आपने 590 की कॉल सेल की हुई थी और प्राइस इतनी देर से ऐसे मूव कर रहा था, ऐसे मूव करके यहाँ पे इन द मनी आनी शुरू होगी। जैसे ये इन द मनी आती है, इस पोजीशन को खत्म, हमने आउट ऑफ द मनी स्ट्रैंगल करना है, इन द मनी स्ट्रैंगल नहीं करना। इज इट क्लियर? यहाँ पे किसी को क्वेरीज है तो मुझे बताओ। तो फॉर एग्जाम्पल इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल हेयर, अगर कोई बैंक स्टेट बैंक की 590 की कॉल सेल करता है और 500 की पुट भी सेल करता है, इट्स अ वेरी गुड 8% रिटर्न अगर एट द एंड ये साइडवेज रह जाती है। और इसको आप लोग नई एक्सपायरी स्टार्ट होने में जितना जल्दी करोगे उतना ज्यादा बेटर है, क्योंकि प्रीमियम ज्यादा होते हैं, धीरे धीरे कम होते जाते हैं। और वंस यू आर इनटू द लास्ट वीक ऑफ एक्सपायरी, जब 10 दिन रह जाते हैं, उस टाइम पे डोंट डू इट। उस टाइम पे मार्केट थोड़ी सी वॉलेटाइल होती है, आपको प्रीमियम्स अच्छे नहीं मिलेंगे और आप रिस्क ज्यादा लोगे, एट द मनी के पास रहोगे उस टाइम पे, स्टॉप लॉसेस ज्यादा हिट होंगे। तो इज इट क्लियर? फोर्थ एग्जांपल, अदानी एंड। अगेन अदानी एंड के केस में इफ यू विल लुक एट इट, व्हेन द ADX वाज राइजिंग, market was bearish. Now ADX has started to recede, but this is not yet a trigger. जब तक प्राइस इस लाइन के नीचे चल रहा है, ठीक है, इट इज द ट्रेंड हैज नॉट ब्रोकन। पर अगर प्राइस यहां से इस लाइन को, ये जो लाइन यहां से आ रही है, इस तरीके से ब्रेकआउट करके फिर ऐसे आ जाता है एक बारी, देन यू कैन बी कंफर्म कि अब आपका जो बोलिंगर बैंड है वो इस जगह पे आ गया हुआ है। नाउ यू कैन डू द साइडवेज स्ट्रेटजी वंस अगेन, बिकॉज जो एक ट्रेंड चला हुआ आया था वो खत्म हो गया है। अब मार्केट कैन हेड इनटू अ साइडवेज सिचुएशन। बट टॉकिंग अबाउट अदानी इन द करंट न्यूज एरिया, आई सजेस्ट कि इसके ऊपर स्ट्रैंगल्स मत करना। इसके ऊपर अगर करना हुआ तो आयरन कॉन्डर करना। स्ट्रैंगल इज व्हेन यू आर जस्ट सेलिंग अ कॉल एंड व्हेन यू आर जस्ट सेलिंग अ पुट, ठीक है। राहुल, इसको सेम इसी तरीके से निफ्टी के ऊपर भी यूज करना है और बैंक निफ्टी के ऊपर भी यूज करना है। बस आपकी एक्सपायरी अगर मंथली एक्सपायरी है, देन यू आर गोइंग टू डू इट ऑन डेली चार्ट्स। इफ योर एक्सपायरी इज वीकली, देन यू हैव टू डू इट ऑन वीकली चार्ट्स और सॉरी 1 आवरली चार्ट और 2 आवरली चार्ट्स, ठीक है।
Okay, if Rahul is asking for one example, I'll give him one example. Right now, as we are speaking, मैंने निफ्टी के ऊपर या बैंक निफ्टी के ऊपर कोई भी पोजीशन क्रिएट नहीं की हुई, ठीक है? So निफ्टी के ऊपर, सॉरी बैंक निफ्टी के ऊपर, this is the formation that is happening on the Bollinger Bands right now, ठीक है? Right now, what I'm waiting is एक तो जो बैंक निफ्टी है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इट इज टेकिंग अ सपोर्ट, ठीक है? बट एज यू कैन सी यहां पर जब बैंक निफ्टी नीचे आई है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है, द एडीएक्स इज ट्रेंडिंग हियर. इज इट विजिबल राहुल? ADX is trending here. So at this particular point, I'm not going to do anything. But once this ADX start coming down, I will not immediately go for a strangle position or a iron condor position, ठीक है? What I will rather do is कि ये जो ट्रेंड यहाँ पे आया है ना, ये पहले इसको खत्म करे पहले. यहाँ से एक बाउंस बैक आएगा. बाउंस बैक आने के बाद प्राइस एक बारी नीचे आएगा like this. Once it does this thing, I will be confirmed ki okay, now the base formation is going on. Now I will do the sideways triangle or iron condor strategy. Now you understand what I'm saying, and I will do it on weekly charts on an hourly time frame with Nifty or Bank Nifty. अगर मैं monthly expiry को look up कर रहा हूँ, then I will be looking at the daily charts. I will not be looking at weekly charts. Is it clear? Setup is same. Only difference is that in iron condor your risk is hedged. In strangles you have an unlimited risk, and with Nifty and Bank Nifty I strongly advise don't go for strangles, and that too overnight. Finally, Mr. Arvind has a question: how to select the stock for strangle? You have to scan the stocks on this setup. For example, right now on Bank Nifty I'm waiting for this particular trade to happen. So you have to wait for it. You have to check every stock. You have to check all the stocks that you think are worth checking, and if the setup is meeting, you can do it. But again, guys, the problem is that when you do this kind of stuff, you have to understand कि risk management आपको रखना पड़ेगा, पोजीशन साइजिंग का ध्यान आपको रखना पड़ेगा. ये नहीं है कि अगर आपके पास मान लो 4 लाख की कैपिटल है, ठीक है, और आप बोलते हो कि यार मैं 8 लॉट ले सकता हूँ, डजंट मीन कि आप 8 के 8 लॉट एक बारी में ले लोगे. There is a thing called position sizing. You have to diversify your positions, ठीक है? So maybe you can do it with 2 lots. 2 lots के ऊपर आपका maximum profit आ रहा है 4000 का. So this is going to be your max loss कि 4000 से ज्यादा मुझे लॉस भी नहीं लेना. बाकी 3 लाख है उसको किसी और पोजीशन पे देखते हैं, ठीक है? And yes, you have to monitor the charts. It's not like you automatically जाओ और you go and sell a strangle and you go and sell a iron condor. Okay, market को setup को एक particular place पे you will have to let it come, and then you have to pull the trigger when the setup is in front of you. What happens is when the market is running or the market is changing its price, we often react to that thing. हमें react नहीं करना, हमें act करना है अपने game plan के according. That is the point. ठीक है? Nextly, iron condors. Again, same वही setup है, ठीक है? यहाँ पर हमारे पास again एक trend था. इस चीज की मैं बात कर रहा हूँ, ये ट्रेंड कटना चाहिए यहाँ पे इस तरीके से. It should cut this trend and once again come here. Once this has come here, it is a confirmed कि it is going to remain
sideways for some time. Even then, if you think you are hitting a stop loss, then hit the stop. कई ट्रेड्स होंगी आपके स्टॉप लॉस हिट करेंगी, बट इट इज योर रिजॉल्व कि आपने वो स्टॉप लॉस लेके निकलना है वहां से. एंड लोगों को निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की आदत पड़ गई हुई है, ठीक है. सो दे आर वेरी एडिक्टिव ओवर दैट. सुबह पोजीशन ली, शाम तक थीटा डिके लिया, बाहर आ गए, या अगले दिन ओवरनाइट का बीटीएसटी का या एसटीबीटी का लिया. व्हेन यू आर गोइंग टू डू इट ऑन स्टॉक्स, you will have to do it with patience. थीटा दिखे धीरे धीरे होगा, एक दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, थोड़ा थोड़ा. यू कैनॉट बी एग्रेसिव अबाउट इट कि यार हो नहीं रहा, होगा, धीरे धीरे होगा. That is why we are taking the position when ADX is starting to fall down, because now market is in a lackluster period. ये सेटअप किसी को भी नहीं पता, किसी को नहीं दी हुई मैंने आज तक. So if somebody has to take a position on Reliance, this is how the trade will probably fall. आपको लगता है कि it is too small, आप थोड़ा सा अपना रिस्क कम करके इसकी रेंज को यहाँ पे इस तरीके से बढ़ा भी सकते हो, 2600 के ऊपर भी आ सकते हो सकता है 63,000 के पीछे आपका जो प्रॉफिट है यहाँ से कम होके 3,000 पे आ जाएगा. बट अगेन on a capital of 63,000, it will be a return of 5 to 6%. बहुत कम होता है जब मैंने स्टॉक को देखा हो कि वो आईटीएम जाके एक्सपायर हो. बट अगेन आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, अगर अगर आईटीएम आने लगी है कोई ऑप्शन, उसको मत रखना. डोंट कीप दैट पर्टिकुलर ऑप्शन इफ इट इज कमिंग आईटीएम. उसका एक बहुत पर्टिकुलर रीजन है, अगर तू पूछेगा तो मैं बताऊंगा, बट आई एम नॉट गेटिंग इनटू इट. बट फॉर द थंब रूल, आईटीएम ऑप्शन को कभी मत रखना अगर सेल की हुई है स्पेसिफिक, ठीक है. मिस्टर प्रदीप, रूल्स आर सेम, रूल्स कोई बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है, ठीक है. सो इफ यू लुक एट द लालपत लैब, दिस विल बी द एग्जांपल ऑफ द लालपत लैब, ठीक है. इफ यू लुक एट द एसबीआई, this is how something like the position will look like, ठीक है. If you look at Oro Pharma, see here, it is going up, now it is coming down. Once यहाँ पे जाने के बाद ये इसको ब्रेक कर देता है ना, it will be a perfect place to sell call here, sell a put here, and then just let it rotate here and there. मिस्टर योगेश, जब तक प्राइस आपकी अपर कॉल स्ट्राइक और लोअर कॉल स्ट्राइक के बीच में है, ठीक है, और धीरे धीरे इधर उधर मूव कर रहा है, दैट इज योर स्वीट स्पॉट, ठीक है. एंड यस संदीप, वंस either side has hit the ITM, फॉर एग्जाम्पल आपने 500 की कॉल स्ट्राइक सेल की हुई है, ठीक है, और प्राइस जो है 501 पे पहुंच गया हुआ है, क्लोज द स्प्रेड. कई बार क्या होता है, मैं आपको एक केस बता देता हूं आपको मैं, ठीक है. समटाइम्स व्हाट हैपन इज, स्टॉक नीचे आता है, इस तरीके से मूव करता है, और हमको लगता है कि वो अब इस तरीके से मूव करेगा इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर. कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा न्यूज बेस्ड होते हैं, वॉलेटाइल होते हैं. आप उसको यहाँ पे सेल कर दोगे, यहाँ पे सेल कर दोगे, वो हो सकता है इस तरीके से वॉलेटाइल हो जाए. आपकी एट अ टाइम एक लेग होगी जो आईटीएम जाएगी, बट आपने स्प्रेड क्लोज कर देना है. स्प्रेड को हम लोग टाइम नहीं करेंगे, ठीक है. वी आर नॉट गोइंग टू टाइम द स्प्रेड्स. और इसके अंदर मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, ठीक है, कि मैं ये बार बार आप लोगों को ये चीज क्यों कह रहा हूं कि हमने आईटीएम को नहीं रखना, आईटीएम को नहीं रखना, ठीक है. लेट मी जस्ट ओपन द ऑप्शन चेन विद यू, ठीक है. ये रही आज की ऑप्शन चेन, ठीक है. देयर इज अ रीजन आई एम टेलिंग यू कि आईटीएम को क्यों नहीं रखना. एंड स्पेसिफिकली अगर लास्ट वीक के अंदर आईटीएम रह जाती है ना, आईटीएम हो रही है, उसको कभी मत रखना, हमेशा उसके अंदर प्रॉब्लम आएगी आपको, ठीक है. आज हमारी एक्सपायरी खत्म होकर हटी है, ठीक है. सो आई एम गोइंग टू टेक सम पर्टिकुलर स्टॉक.
Let me just look at Reliance once. Or SBI as well. Yeah, and SBI is 5. Okay, guys, can you look at this SBIN chart जो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा रहा हूँ? मैं जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ इस चीज के अंदर SBIN के ऊपर यहाँ पे इस पर्टिकुलर लेवल पे एक सपोर्ट बनी हुई थी, ठीक है, और इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बनी हुई थी, ठीक है। जब यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, और मैं 2 आवर्स के एग्जांपल के साथ बता रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे अगर कोई इस टाइम पे आयरन कॉन्डोर करता तो वो हो सकता है 570 की कॉल को सेल करता, या फिर हो सकता है यहाँ पे 526 या 530 की पुट को सेल कर देता, ठीक है। नाउ लुक एट द ऑप्शन चेन वंस, ठीक है। ये देख रहे हो 395 के कॉन्ट्रैक्ट से यहाँ पे आज के दिन में जिस टाइम पे मार्केट क्लोज हुई है SBIN के अंदर ये 273 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो किसी ने बंद किए हैं पुट्स की साइड के ऊपर। व्हाई दे हैव क्लोज्ड इट, उसका रीजन क्या है? जब ये मंथ यहाँ पे स्टार्ट हुआ था लोग यहाँ पे कॉल्स भी सेल कर रहे थे, पुट्स भी सेल कर रहे थे, ठीक है। जिस टाइम पे ये 540 के पास ये स्ट्राइक इन द मनी होनी शुरू हुई इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है, जिन्होंने भी यहाँ पे पुट्स राइट की थी उन्होंने पहले इसको डिफेंड करने की कोशिश की यहाँ पे, ठीक है। जैसे प्राइस यहाँ से नीचे को गया ना, जितनों ने भी यहाँ पे पुट शॉट की थी वो सबके सब यहाँ पे ट्रैप हो गए इस जगह, और प्राइस जितना नीचे जा रहा है ये लोग उतना ज्यादा ट्रैप हो रहे हैं। जब लास्ट वीक शुरू हो जाता है ना, फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, आपका ब्रोकर आपका मार्जिन ब्लॉक करना शुरू कर देता है आपकी ITM ऑप्शंस के लिए जो आपने सेल की होती है। उस टाइम पे जितने सेलर्स होते हैं अगर उनकी सेल की हुई ऑप्शन ITM आ जाए वो सारे के सारे फंसे होते हैं। जितना वो फंसते हैं मार्केट मेकर प्राइस को उतना नीचे को पुश करते हैं, जितना प्राइस को वो नीचे पुश करते हैं उतना ऑप्शन राइटर फंसता जाता है। सिर्फ शॉर्ट कवरिंग के चक्कर में उसको अपने इस प्राइस को और ऊपर पुश करना पड़ेगा। तो अगर किसी ने 5 रुपए की ऑप्शन ली होगी वो सोच रहा होगा यार चल 540 की ऑप्शन है, आई कैन गेट आउट एट 535, मेरा तो 5 रुपए का प्रीमियम तो मुझे मिल ही जाएगा ना। बट वो 540 से उसको 520 तक भी खींच जाएंगे just by the method of short covering. That is why it is important to understand कि last week के अंदर specifically if an option is coming ITM, don't keep. प्रदीप, stocks के अंदर you cannot do much adjustment. This is not Bank Nifty, and even I don't do adjustments on Bank Nifty now. ठीक है? So this is how you have to do iron condos or strangles in a systematic manner. Okay. नेक्स्ट जो हम लोग अपनी वर्कशॉप करेंगे उसके अंदर वी विल बी अंडरस्टैंडिंग अबाउट हाउ टू डू द बैटमैन स्ट्रेटेजी, ठीक है। इट इज ऑल्सो वेरी गुड स्ट्रेटेजी। उसके अंदर हम लोग इस चीज का भी फायदा ले सकते हैं व्हेन प्राइस मूव्स टू आइदर एंड। अगर इसके उसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे। अगर इसके रिगार्डिंग अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताइए, उसको हम लोग अभी हेड ऑन टेक करेंगे। स्ट्रेटेजी इज वेरी सिंपल, ठीक है। बस ये है कि इसका ये जो सेटअप है ये पता होना चाहिए कि हमने इसको किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है। आपका एक ट्रेंड आना चाहिए, ट्रेंड आने के बाद हमारी जो एक बेस लाइन होती है वो कट होनी चाहिए, एंड देन ADX जो होता है वो नीचे को आना चाहिए। When these 3 conditions meet, you can go for a iron. Deepak ji, we can start taking questions on this thing.
Yes, sir. प्रदीप, एग्जैक्टली दैट इज द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक. जस्ट ये नहीं है कि मार्केट ओपन हुई और जाके स्ट्रैंगल बना दो एंड देन से कि हाँ ठीक है यार, बाय द एंड ऑफ द मंथ वो अपने आप 0 पे चला जाएगा. नहीं, स्ट्रैंगल करने का मतलब क्या है? स्ट्रैंगल करने का मतलब है द प्राइस इज डल राइट नाउ, मार्केट इज डल, मार्केट इज डेड, साइडवेज. एक ऐसा पीरियड आता है ना जब आप स्टॉक को देख देख के तंग हो जाते हो, यार मूव ही नहीं कर रहा. हमें वो वाला फेज चाहिए. वो फेज हर वक्त नहीं होता. अगर आप कुछ भी कर दोगे ना वॉलेटाइल मार्केट के अंदर, अगर आप उसको कर दोगे, यू विल बी स्टक. सो रादर लेट योर कंडीशंस मीट. अगर आप डेली चार्ट के ऊपर देख रहे हो फॉर स्टॉक्स, आपको पूरा दिन कुछ करने की जरूरत नहीं. 2:30 बजे आके बैठो और अपने स्टॉक स्कैन करने शुरू करो. और फिर अगर कोई स्टॉक करता है उसको जाते हुए लो, अगले दिन देखो उसको बैठ के. हर्षित, this is a rule कि when ADX is greater than 25, market is trending, but this is not the only rule. आपको उस टाइम पे support and resistance का ब्रेक भी देखना पड़ेगा. You will have to see, आपको कुछ ना कुछ पैरामीटर और लगाना पड़ेगा. जस्ट बाय द वर्च्यू की प्राइस यहां से 25 के ऊपर जाना शुरू हो गया, मार्केट ट्रेंड कर रही है, वो विप्सॉ भी दे सकती है. फॉर एग्जाम्पल ये जो कंडीशन है, 3 कंडीशन है, ये भी विप्सॉ दे सकती है, स्टॉप लॉस हिट कर सकती है. ठीक है, बट हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है कि वंस दिस स्टार्ट्स, एक बारी ये कंडीशन स्टार्ट हो गई, ये रिसीड करना शुरू हो गया, मार्केट साइडवेज हो जाएगी. इसी के अंदर एक और बात बता देता हूं, अगर आपको लगता है एडीएक्स नीचे आने के बाद वापस ऊपर की तरफ को जा रहा है, देन ऑल्सो यू कैन ट्रेल योर प्रॉफिट एंड क्लोज द पोजीशन. दैट इज अनदर वे. बट गोइंग अबव 25 इज नॉट अ नेसेसरी कि उसके बाद वो ट्रेंड पकड़ेगा. विप्सॉ भी दे सकते हैं, विप्सॉ दे सकते हैं. इन माय एक्सपीरियंस 25 के ऊपर विप्सॉ दे सकता है. आई प्रेफर बोथ स्टॉक एंड बोथ इंडेक्स. शॉर्ट टर्म जब मुझे करना होता है बैंक निफ्टी के ऊपर, आई विल डू इट विद आवरली चार्ट फॉर बैंक निफ्टी. मंथली के लिए मैं स्टॉक्स के ऊपर करता हूँ. स्टॉक्स के ऊपर करने से मुझे बेनिफिट जो मिलता है वो मैं एक बता देता हूँ. ठीक है, हर चार्ट के ऊपर हर वक्त यू डोंट हैव अ ट्रेड अवेलेबल. ये नहीं है कि मैं अभी चार्ट खोलूंगा और मुझे पता चल जाएगा कि मुझे एक ट्रेड मिल गई हुई है और मैं उसको ले लूंगा. नहीं, हर किसी की, हर ट्रेडर की अपनी एक सेटअप होती है, उस सेटअप के ऊपर उसको एक्ट करना है. ये नहीं है कि मैं सुबह मार्केट ओपन की 9:30 पे और मैं आके बोलूँ कि अब मुझे ट्रेड लेनी है. नहीं. सो इफ देयर इज नो ट्रेड अवेलेबल ऑन बैंक निफ्टी, आई माइट टेक अ ट्रेड ऑन सम स्टॉक विच इज एक्चुअली मीटिंग माई सेटअप. अगर मेरी सेटअप को नहीं मीट कर रहा, मत लो उसको. सो स्टॉक्स को देखने से फायदा ये होता है कि हम लोग गलत ट्रेड के अंदर ना घुसे, वो हो जाता है. एनी मोर क्वेश्चंस? Yes, Pradeep ji. You can have all the recordings of the past webinars from our website. There is a option webinar in our menu section of the website. Just go and visit past webinar sessions. You will have all the recordings, as well as you will have information of our all upcoming webinars. Guys, do we have any more question? Okay, I am just launching a poll, and please do participate in this poll.
This is a very simple one. Just let us know whether you are going to apply the learning from this session in the live market, either yes or no. And guys, one more request: we need your feedback. We need your suggestions. So either you can just drop us at the end of the session, or you can write us an email at support@sasonline.in. This will surely encourage us, and we are regularly posting your feedbacks, testimonials on our social media platform to encourage others to participate. And as we said, the more you learn, the better you trade. Guys, Rohitji, I think we are good for now. We don't have much questions left. Yeah, today's was a crisp section actually. Exactly. Exactly. थ्योरी ज्यादा नहीं थी. थ्योरी के अंदर प्रॉब्लम होती है बिकॉज थ्योरी इज समथिंग दैट उसके ऊपर क्वेश्चनिंग ज्यादा होती है, कुछ समझ नहीं आता. प्रैक्टिकली व्हेन यू शो इट देन थिंग्स गेट क्रिस्टल क्लियर व्हेन द मेथड्स आर क्लियर. गाइस, इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी आपको. वेबिनार डैशबोर्ड पे जाके आप वेबसाइट के थ्रू इसको एक्सेस कर सकते हैं, और रिकॉर्डिंग देखने के बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन ड्रॉप अस ए मेल at support@sasonline.in, or even can ask your questions in our upcoming session. Okay, so this is the last call. If any question, please. Any doubt? Yeah, tomorrow we are doing Batman strategies. You can join using the same link at the same time. We are meeting tomorrow, and this will be the last session of this option trading workshop For March, for February. for Feb month. Yeah. So, Rohit, I think we can conclude here. ठीक है जी. Thanks Pradeep. Thanks Deepak ji. Thank you, guys. Thanks, Rohit ji. Thanks for being with us. And please do participate in our feedback survey, which is coming to you at the end of this webinar session. Thanks once again.